controversial opinion, but never date an ugly guy. Trust me. Shut the fuck up with that dishwasher noise. You expect us to trust a species whose life is filled with fillers and filters, those fake eyelashes, those wigs, barbecued rubber nose, lip fillers, breast implants, BBLs, and fuck knows what else? Wow. Look who's talking, a walk-in Botox industry. Everyone looks the same, nothing different, below average, experimental second-hand damaged samples of a cosmetic surgeon. And she goes like, oh, never date an ugly guy. Ma'am, it's not our job to look pretty. It's your job, which you have miserably failed at. That's why you have your faces caked with 8 kilos of makeup even when you sleep. You all cannot even face yourself in the mirror without it for a second. And you call men ugly and insecure? Who's really insecure? Delusional donuts. No wonder the cosmetic industry fools you so easily and makes millions and millions from your fucked up insecurities. So madam, chill out, sit down. You've been standing too long on your illusions. It would just take a glass of water across all these baddies' faces to flip them into Komodo dragons. When you date a 2 on 10, he thinks I just bagged this 10 on 10 baddie, so I can probably bag like a 12 on 10 also. Maybe he can bag a 12 on 10. Absolutely he can. Just like he bagged your 10 on 10 delusional baddie. Considering the fact that you all are hypergamous lizards by nature and you all never date down, so a guy who's 2 on 10 and is not on your level looks wise but he still manages to bag you all, what the fuck does that say? It screams only two things, that he's the player, he's the Casanova and you got played. He's the master, he knows the game and you're still learning the game. And then when he outperforms and leaves you all for a fucking 12, that's when you get mad. Not because he's ugly, because his values are higher than your short-lived average beauty. And since when has it become a proud moment to drop your standards for some resources? The very fact that you so-called 10s and baddies accept the fact that you all get bagged by a 2 on 10 guy, it proves that y'all are the most deadliest and selfish resource extractor that ever existed on this planet. So you would even date a fucking alien who has a knee coming out of the forehead till the time he's offering some value or resources. Either the fucking money, the confidence, the security, the risk game, or the long size. The moment you see any of these, boom, your standards drop like a fucking rock in the air. And then you turn yourself into rejected, used up sweatpants by your own consent. And then you make a video glorifying your loss and calling men as ugly and trash and 2 and 3 on 10 and seeking validation from all your fucking hurt and confused lizards in the comments. भाई मेरे को जानना इन लोगों को कॉन्फिडेंस कौन भाड़े पे दे रहा है, क्योंकि सब कुछ लिमिटेड है तुम लोग का. फर्टिलिटी टाइम सेंसिटिव, अंडे लिमिटेड, ब्रेन सेल्स लिमिटेड, ब्यूटी लिमिटेड, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लो, IQ एवरेज, सब कुछ लो एवरेज लिमिटेड है, लेकिन बकचोदी लिमिटलेस करनी है. Unbelievable guys. And all the entitled 10s and baddies and feminists, you know I love you all. This one is only and only for you all from the bottom of my ass. And all the humble, beautiful, pretty, feminine ladies, this one is not for you all. No offense. Chill out. You dedicate everything to your mother. Yeah. What is left there for your partner then? Paisa, protection, provision, peace, pampering, princess treatment, and most important, the privilege for you to quit your fucking job as a wife and be that certified filthy freeloader and still be accepted in the society as a wife without any judgment. Which men do not have, by the way. That's what's left for the partner. तुम लोग क्या लाते रहे लुक्के लोग? लकवा मारे हुए हाथ से भी ज्यादा हिलता हुआ तुम लोग का मेंटल स्टेबिलिटी लेके बुझे हुए बीड़ी की शक्ल को मेकअप में लपेट लपेट के बैडी के नाम पे बरिस्ता के कॉफी कप से भी ज्यादा मर्दों के मुंह लग लग के 20 से 30 के बीच में पूरा शर्म बेच के किसी लोकल बीच से भी ज्यादा रैन थ्रू होके और 30 होने तक अपने बॉडी काउंट को पॉपुलेशन में बदल के क्या लाते हैं आज की तारीख में तुम लोग टेबल पे? बकचोदी बच्चे, बैगेज, पीरियड्स और पास्ट ट्रॉमा के अलावा. नो ऑफेंस, रिस्पेक्ट टू ऑल द मदर्स, बट इट्स अ वेरी नेचुरल फेनोमेनन. यू डू नॉट हैव टू स्टेप आउटसाइड योर फकिंग बायोलॉजी टू डू दैट, या फिर बिल्ड योर फकिंग वैल्यू या प्रूव योर वर्थ मर्दों की तरह. व्हाट इज लव फॉर योर पार्टनर? अरे आंख खोल, अकल के अंधे तो है ही ये लोग. आंख पे पट्टी किसने बांध दिया भाई? कौन से अंधे पकोड़े ने पेन पकड़ के पेल दिया स्क्रिप्ट इस बवासीर प्रोग्राम का? अबे दिमाग में पट्टी कम था लोग के कि आंख पे भी पट्टी बांध दिया. अब ये किसी हिसाब से कम खतरनाक थोड़ी है भाई. जहर फेंकते फिरेंगे अंधाधुंध, साला खतरा भी रास्ता नाप लेगा इनको देख के. तो right, my mom has given her life towards everything that I do. Okay. So my life would naturally go towards everything that she does for us first and then herself. So that's, I just have to balance it out. Exactly. भाई एक नंबर बिल्ला लौंडा है ये. जैसे इसने बैलेंस करना सीखा है वैसे तुम भी बैलेंस करना सीखो लौंडे लोग, अपने पेरेंट्स और अपने पार्टनर्स को. लेकिन पार्टनर के प्रेशर में आके पेरेंट्स को अपने जिंदगी से डिपार्ट मत करना. ये बहन की पकौड़ियों के पुस्सिया वाले प्रेशर में आके अपने पाइप का पानी मत छूटने देना फटाफट, क्योंकि वो छूटा हुआ पानी नेचुरली भर जाता है, लेकिन पेरेंट्स छूट गए तो वो जगह खाली ही रह जाता है. ये सब छपरी चिपकल या चूहे की शक्ल की लॉजिकली टकली लोग का बकचोदी जिंदगी भर चलते रहेगा. व्हाई द फक वी शुड मूव इन विद योर पेरेंट्स?
सिर्फ इतना ही बोलना है, you're free to fuck off. I wish you luck for your next hitchhike on the highway in the hot sun till you rot with your entitlement, but I do not need a pain in the ass for the whole ride in the backseat as a passenger. So thank you and piss off. बस इतना कॉपी पेस्ट और इन सारे पोकेमॉन के पहाड़ जितने ईगो को पुराने पुतले की तरह टूटते हुए देखोगे 2 सेकंड में. You for or against prenuptial agreements in India? Against. Definitely against it. Against. I would say against. Obviously, I will not, but like, do you not trust me enough? नो वी डोंट. जो एक टूरिस्ट की तरह 10 साल में 20 ट्रेन बदल बदल के 30 साल की उम्र में आखिरी ट्रेन पकड़ने पहुंच गए, जिसको उसने पीस बाय पीस जोड़ जोड़ के अपने मेहनत से बनाया है, वो तुम पे ट्रस्ट करे. और लाते क्या तुम लोग गर्दन हिला हिला के हा ही बैग्स के, जिसमें होते हैं बकचोदी और इमोशनल बैगेज, तुम्हारे नल्ले सिंपने और वो झाट बुल्ले एक्स ने दिया हुआ, जिसको ये अपने ट्रेन में भरे और तुम ये फुकटा लोग को सिर पे बिठा के रानी की तरह घुमाते रहे दुनिया भर. वाह, that looks like a fucking one-way road to eternal slavery. You don't fucking trust me enough. कुत्ते सबसे लॉयल होते हैं इस दुनिया में. इवन कुत्ते तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ऐसे पेडिग्री वाली शक्लें और ये बी ग्रेड वाली हरकतें देख के. Why can't you trust the relationship? Isn't it supposed to be built on trust? Like, तेरे को खुद पे ट्रस्ट क्यों नहीं है रे? तेरे को तेरे खुद के कैरेक्टर पे डाउट है. तेरे को पता है तेरी नीयत कल को 100 रुपए के मैकडॉनल्ड्स के वेज पैटी की तरह 100 दिन में फ्लिप मारने वाली है. तब भी तू ये ट्रस्ट वाला घोड़ा मर्दों पे छोड़ रही है अकाउंटेबिलिटी डॉज करने के लिए. क्योंकि अगर तेरे दिमाग में एक ही चीज हो कि मुझे एक अच्छे हस्बैंड के साथ फैमिली बिल्ड करना है लॉयली, तो उसके पीस ऑफ माइंड के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, मुंह से लेंडो का सुनामी नहीं निकलता. ऐसा इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत हो रही है. इसका मतलब तेरे को इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं, एग्जिट स्ट्रैटेजी है दिमाग में, जिसको वो लीगल डॉक्यूमेंट पूरा होने नहीं देगा. इसलिए 15 सेकंड के क्लिप को 1 सेकंड में पूरा सार्वजनिक संडास में बदल दिया. सबके सब हर्ट हाईनास का ऐसा पाव किलो लेंडा गिर गया, जिसके साथ तुम्हारे सारे हिडन इंटेंशंस 2 कौड़ी के बाहर आ गए. ऐसा पच. और एक कॉकरोच जैसे मेयोनेज़ में फिसल के गिर गया हुआ ऐसा अवतार लेके ये बकचोदी उधर नहीं करेंगे जब एक कंपनी बोलता है कि 1 करोड़ का पैकेज है साल का, लेकिन 5 साल का बॉन्ड साइन करना होगा एक्सक्लूसिव. वहां पे भाई सेंटेंस खत्म होने के पहले साइन हो चुका होगा, और साइन होने से पहले कपड़े बदल के रेडी हो चुके होंगे पहले दिन की रिपोर्टिंग के लिए. अरे बॉस, आप सिर्फ बोलो, मेरे गर्म सांसों से आपके मैं पसीने वाले बगल सुखा दूंगी. चाटना, अरे वो तो भैंस से लंबी जुबान लेके पैदा हुई हूं मैं. चाटना तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. वहां पे मैं मर्दों का दिमाग चाट लेती हूँ, यहाँ पे आप जो चटवा चाट लूंगी. सारे ऑफिस से मॉप हटा दो, सूखा गीला बवासीर सब चाट लूंगी, बस मेरे जेब में छेद मत होने देना. और आदमी अगर बोल देता है कि तेरे को मैं फ्यूचर फैमिली पैसा प्रोटेक्शन देता हूं, उसके बदले मैंने जो बिल्ड किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर दे, वहां पे व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी इनफ? वहां पे इन लोग में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग जाता है. और मैं सारी औरतों को नहीं बोल रहा हूँ, डू नॉट ट्विस्ट इट, डोंट गेट मी रॉन्ग. मैं सिर्फ वो सारी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लेंडियों को बोल रहा हूँ जो एक क्लिप में दिखाया गया वैसे होते हैं, जो ये प्रूव करता है कि भले ये लोग अगर फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं प्रीनप को साइन करना, लेकिन ये बात जरूर साबित करता है कि भले मैरिज खत्म हो, हमारी लालच खत्म नहीं होगी. भले हम लोग इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली, लेकिन तेरा पैसा तो चाहिए ही चाहिए. सो जिसने भी ये क्लिप बनाया एक नंबर बिल्ला काम किया, बिकॉज ये आई ओपनर है सारे मर्दों के लिए 2026 में. दिस वीडियो इज अ वॉक इन एफर्मेशन दैट दीस काइंड ऑफ वुमेन आर नॉट लुकिंग फॉर मैरिज व्हाटसोएवर. दे आर लुकिंग फॉर अ टेम्पररी ATM machine to fund their fucked up freeloader lives while they sit there like pathetic blood sucking leeches, sucking off every bit of your resource clean like a fucking vacuum cleaner while they peacefully plot their lifetime return investment plan. ये पोस्ट पढ़ो. Imagine a gender being so goated that people had to invent patriarchy to control them. तुम लोग का डेफिनेशन क्या है रे गोट का? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उसका मतलब होता है कोई भी फील्ड का एक ऐसा पर्सनैलिटी जिसे कोई छू नहीं सकता. ही इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द एलीट परफॉर्मर, द फाइनल गैंग बॉस विलन, द अनटचेबल, अनफकेबल विथ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. तो अगर तुम खुद को उस लेवल पे मानते हो, कोई तुम्हें कैसे कंट्रोल कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, तुमसे कोई रूल्स फॉलो करा सकता है? कैसे? एक ऐसा गरीब गजकरन गोट है भाई, गली के गुल्लू की तरह, जो बस एक अटेंशन के गुलकंद और वैलिडेशन के गुलाब जामुन के लिए खुद ही का ग्रेटनेस खा जाए वो घास के साथ. ये तो भाई गोट के आसपास भी नहीं है. इनफैक्ट तुम खुद प्रूव कर रहे हो कि हम वीकर सेक्स है, हम खो चुके हैं वो आखिरी अनाथ कचोरी की तरह, सूखे हुए नारियल के करवंटी की तरह, वो करंट लगे हुए कंफ्यूज चिपकली की तरह रोड पे यहाँ वहाँ. हमको एक लीडर चाहिए जिसे हम फॉलो कर सके और फिर एक फुकटिया फ्रीलोडर बन के रह सके. तभी तो आए फिर मर्द इन्वेंट करने वो पेट्रियार्कल सोसाइटी, जिसको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ, रिस्क टेकिंग, हाई IQ और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की, जो जाहिर सी बात है तुम लोग के पास नहीं था. इसलिए तुम साइड में गोट का टैग लगा के घास खाते हुए खड़े थे, मर्दों को देखते हुए फटाफट बिल्ड करते हुए, और फिर बना के देने के बाद उसमें घुस के मर्दों के सिर पे चढ़ के उन्हीं के कान में हगने लगे. ये सब पोस्ट लगा के खुद को 2 पल की खुशी देने की नाकाम कोशिश कर करके. अनबिलीवेबल गाइस, फक. कमेंट्स तो मैंने अभी तक खोले ही नहीं है. वही 2.5 पैसे के डिश वॉशर और वो सस्ते वड़ा पाव सिम्स का वैलिडेशन से भरा होगा, और क्या.
तड़प देख रहे हो भाई इन सारे सोन पापड़ियों की, पापा के परियों की सुपीरियर फील करने की एट एनी फकिंग कॉस्ट, भले ही उसके लिए लॉजिक का मर्डर करना पड़े या खुद को एक्सपोज ही क्यों ना करना पड़े। फ्राइड पापड़ से भी नाजुक माइंडसेट लेके और सुपारी जैसा क्रैक लॉजिक लेके ये सारे ग्लिच परफॉर्मेंस देने वाले गरीब गोट लोग घर पे रहो बे तुम लोग। कंटेंट लाओ बे, बकचोदी बंद करो ये सब रे, कसम से जब देखो वही घिसे पीटे दो कौड़ी का अपना मुद्दा लेके हाइना जैसे रोते रहते हो। अपने हर्ट फीलिंग्स घर पे रखो, बकचोदी कम करो, कुछ कंटेंट लाओ बे। शी।